Welcome to all of you in this YouTube channel of Being Engineer. In this session, we will see RAM waveform and RAM function and how to use that RAM function in order to write the function for the given particular waveform. तो आइए हम शुरुआत करते हैं RAM function से. Basically, it is a waveform which is having a particular slope, and let us see how to write the expression for it, because it is very important for analyzing the other kind of waveform. Okay, suppose this is the line which is given to us, and this line is maintaining a particular slope, let's say theta, and this tangent of theta, which is nothing but the gradient of the line or slope of the line, is, let's say, small k. So this function can be represented mathematically by RT. It is equal to t for t greater than equal to 0 and 0 for t less than 0. There is no issue. You can write tut sometimes. Okay? So RT is equals to tut. So very frankly speaking, we can write RT is equals to tut. क्योंकि हम जानते हैं ut जो है, it is also a waveform which moves from 0 to infinity, and right now we are not using any kind of coefficient here, so it is 1. But basically, if the slope of the line is tangent of theta is equals to k, then we should write k here, so it will be kt. So this is ktut. Okay, if theta is equals to 45 degree, let's say, for an example, then tangent of theta is nothing but tan 45 is equals to 1. So your k will be 1. When your k will be 1, this rt is nothing but tut. In that case, it is called a unit ramp waveform. Unit ramp function. Okay. So what is the function? What is the difference between a ramp function and a unit ramp function? Very simply, we can say that a ramp function is a ramp function with any slope, but a unit ramp function is a ramp function with unity slope. That's the only difference. ठीक है. तो नॉर्मली हमारा थीटा कितना भी हो सकता है, 0 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, 30, 60, 45, 27, 93, 27, 63, कुछ भी हो सकता है. But when it becomes 45, your tan theta become 1 and it is called a unit ramp function. Otherwise, we should say it is a ramp function. ठीक है. याद रखिए, स्टेप की हाइट होती है और रैंप का स्लोप होता है. आइए हम देखें इसका एप्लीकेशन क्या है. ठीक है. इसके एप्लीकेशन की यदि हम बात करते हैं, तो आइए हमने एक एग्जांपल ले लिया. ठीक है, चलिए पहले तो हम यही ले लेते हैं, एक बहुत सिंपल एग्जांपल. फ्रॉम 0 to 5 seconds, ठीक है, दिस इज द टाइम एक्सिस. द वोल्टेज वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 and terminates at a particular value, and let's say this value is 10 volt. 10 volt. Okay, and we have to make the function for it. तो सबसे पहली बात जो हमें करना है, इस फंक्शन को लिखना है हमें. तो 0 से 5 तक है और हाइट जा रही है 0 से 10. तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 10/5 यानी 2. ठीक है. दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड वी नो दैट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इक्वेशन इज नथिंग बट y is equals to mx, because c is equals to 0. General equation of the line, y is equals to mx plus c. But when it's passing through the origin, means it will satisfy 0 0. When we put 0 0, c will become 0, and when c will become 0, the equation of the line will become very simple, that is nothing but y is equals to mx. यहाँ पे y एक्सिस में हमेशा फंक्शन होगा, तो y एक्सिस में फंक्शन यानी क्या है हमारा? वोल्टेज है. y एक्सिस में फंक्शन क्या है हमारा? वोल्टेज vt. सो वी कैन पुट y is equals to vt. और m हमारा स्लोप होता है, स्लोप यानी tan थीटा यानी k. और tan थीटा कैसे निकाला जाता है? परपेंडिकुलर बाय बेस से. तो ये सब जानते हैं. अगर हम परपेंडिकुलर बाय बेस करें तो 10/5 यानी 2 हो जाएगा. और x एक्सिस में टाइम है, जैसा कि सबको दिखाई दे रहा है, तो y vt is equals to 2t होगा. Now, it's not too simple. We can write, okay, the function is vt is equals to 2t, but we have to use the limits of time as well. So how can we represent it? We have to represent it vt, because if I am writing vt is equals to 2t, basically it is a line passing through the origin and terminates at infinity. But right now it terminates at 5 rather than infinity. So we have to write vt is equals to 2t is okay. But now we have to fix the time limit. So the gate 0,5, this should be mentioned. I hope I made it clear to you.
if you are writing Vt is equals to 2t, it is a line passing through origin and terminates at infinity, means it will never end. But right now the function which is given to us, it is having finite dimensions. ठीक है, 0 से 5 तक ही है ये हमारा फंक्शन, तो टाइम लिमिट मेंशन होना जरूरी है। और ये टाइम लिमिट को डिसाइड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, गेट फंक्शन यूज किया, क्योंकि गेट यूनिट गेट यूज किया, मतलब हाइट तो उसकी 1 है लेकिन लिमिट 0 से 5 वहां पे हमें मिल गई। तो अब हम इसको कैसा लिखेंगे, देखिए Vt इज इक्वल्स टू 2t। एक्सपांशन तो हमने सिर्फ गेट का देखा ना, यू गेट a टू b ut माइनस a माइनस ut माइनस b, ठीक है, या गेट माइनस a टू प्लस a ut प्लस a माइनस ut माइनस a। सिमिलरली गेट 0 टू 5, व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर, ut माइनस 0 माइनस ut माइनस 5, वेरी सिंपली। ओके, पहले इनिशियल लिमिट को टाइम में से घटाना है, फिर फाइनल लिमिट को टाइम में से घटाना है। तो देखिए Vt इज इक्वल्स टू व्हाट आई कैन राइट, this is 2t in the bracket ut minus again 2t in the bracket ut minus 5. Okay, now this is tut. Okay, this is a ramp with two slope. Okay, अगर tut के आगे 1 लिखा होता then it is called a unit ramp, but it is having 2 as a coefficient, so it is a line or ramp with 2 slope. And here you can again see tut, slope is 2, but सामने अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक शिफ्टिंग भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे शिफ्टिंग। यू कांट टेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, आप इस पार्ट का लैप्लास डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो इसमें कैसे डील करना है, आइए हम अगली स्लाइड में देखते हैं। 2t ut माइनस 2t ut माइनस 5। ओके, सो दिस इज Vt इज इक्वल्स टू 2t ut माइनस 2t ut माइनस 5, ठीक है। So basically we have to write here Vt is equals to 2t ut minus 2। यहां जो शिफ्टिंग आपको दिखाई दे रही है, इसी तरह की शिफ्टिंग हम आगे क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। और कैसे करें, मन से तो शिफ्टिंग दे नहीं सकते, तो शिफ्टिंग देंगे और उसको नलीफाई भी करेंगे, यानी वी शुड राइट t minus 5 plus 5 into u of t minus 5, ठीक है। Now this Vt is equals to 2t ut minus 2 t minus 5 ut minus 5. So I can write t minus 5 ut minus 5, ठीक है। और प्लस 5 ये जो एक्स्ट्रा बचा तो प्लस 5 इंटू माइनस 2, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 10 u of t minus 5, ठीक है। So Vt is equals to 2t ut minus 2 t minus 5 ut minus 5 minus 10 ut minus 5. This is the function which is given to us. Now we can take the Laplace transform of this particular function. Vs is equals to 2 tut का लाप्लास याद रखिएगा 1 upon s square होता है minus 2. Again this is tut, but the only difference is it is not simple tut, it is t minus 5 ut minus 5, means ramp with a designated slope. Okay, ramp with a specified slope, ramp with a specified shifting, not slope, sorry, I take my words back. So this is 2 upon s square, and what is the shifting, minus 5, so it is e to the power minus 5 s minus 10 ut minus 5, ut का लाप्लास 1 upon s e to the power minus of 5s. So Vs is equals to 2 upon s square minus 2 upon s square e to the power minus 5s minus 10 upon s e to the power minus 5s. This is the Laplace transform of the given waveform. याद रखिए जब भी एस स्क्वायर का टर्म डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व है वो रैंप की मौजूदगी दिखा रहा है, और एस है तो स्टेप। अब आप बोलेंगे यहाँ स्टेप तो है नहीं, तो एस क्यों आ गया, क्योंकि रैंप ही तो दिया था हमें कुल मिला के, क्योंकि हमने रैंप को एनालाइज करने के लिए स्टेप की हेल्प ली है, इसलिए 1 upon s का टर्म भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट। अब सपोज the waveform is this. A triangular waveform. Let's say this is 0, this is 3, this is 6, okay, and the height is let's say 12, okay, ampere. So this is basically a current waveform IT on the y-axis and time on the x-axis. Now how can we write this? तो पहले हम इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, इसको पार्ट 1 मान लिया, फिर हम इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, इसको पार्ट 2 मान लिया। पार्ट 1 में यदि हम देखें तो ये एक लाइन है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि इसका स्लोप पॉजिटिव है,
ठीक है। और दूसरे में हम देखें तो ये एक लाइन है जो नीचे की तरफ जा रही है, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है। तो एक का स्लोप पॉजिटिव है, एक का स्लोप नेगेटिव है। अच्छा, स्लोप लेकिन इक्वल है, कैसे पता है कि अगर हम देखें तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ परपेंडिकुलर ये कितना है, दिस इज नथिंग बट 12, तो 12/3 यदि मैं करता हूँ तो दिस विल बी 4, ठीक है। द स्लोप इज +4 एंड हियर इफ आई डू दिस, what is the height 12 and the base is 3 to 6 means 3, again 12/3 is 4, but it is -4. So the only difference between one part and another part, one part is having a +4 slope and second part is having a -4 slope. So how can we write this? Okay, because the equation is y is equals to mx, ठीक है, पहली लाइन के लिए, because it is passing through the origin. But as far as second line is concerned, it is not passing through origin, so the equation will be y is equals to mx plus c. तो आइए हम उसकी इक्वेशन यदि हम लिखना चाहते हैं तो mx plus c, y is equals to mx plus c. ओके, तो y एक्सिस में करंट है तो हमने इसको लिख लिया I2t। I2t क्यों? क्योंकि पहले पार्ट को हम I1t लिखेंगे, ठीक है। m मतलब स्लोप tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, सो दिस इज 12/3। आई होप एवरीवन इज गेटिंग, otherwise I should write here 12/3 to 6 means 3, so 12/3 is 4, but it is moving downward, so it is -4, so -4, x एक्सिस में टाइम है t और प्लस c, ठीक है। अब c की वैल्यू कैसे निकालें? तो आप देखिए ये जो सेकंड लाइन है वो 6 पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो रख देते हैं हम यहाँ पे। एक्स एक्सिस में, यहाँ टाइम एक्सिस में 6 है तो टाइम की वैल्यू 6 रख देता हूँ, 6 4 जा -24, और यहाँ पे करंट 0 है और प्लस सी, सो व्हाट इज सी? सी इज नथिंग बट 24। So what is the I2t expression? I2t expression is nothing but -4t plus 24. -4t plus 24. Is it okay? और पहली वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सिंपल y इज इक्वल्स टू mx, y एक्सिस में हमने ले लिया I1t और m मतलब स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस, 12/3 इज नथिंग बट 4, और x एक्सिस में टाइम है तो 4t, ठीक है। सो द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द करंट can be write in write with the help of I1t and I2t. So this is I1t plus I2t. What is I1t? I1t is nothing but 4t and limit gate की 0,3. What is I2t? I2t is nothing but -4t plus 24. And what is limit of the gate? Gate की limit होगी 3,6. This will be IT. ठीक है, तो इस तरह से हम करंट का एक्सप्रेशन दे सकते हैं। IT is equals to 4t gate 0,3 plus minus of 4t plus 24 gate 3,6. ठीक है, I hope I made it clear to all of you. तो अब इस इक्वेशन को हम किस तरह से फाइनल एक्सप्रेशन तक ले जाते हैं और लाप्लास लेते हैं वो हमें देखना है। सो आई टी इज इक्वल्स टू 4t गेट कॉमा 0,3, आई टी इज इक्वल्स टू 4t गेट 0,3 प्लस -4t प्लस 24 गेट 3,6। आइए इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 4t गेट 0,3 और इसमें से -4 यदि हम कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा? t -6 बचेगा, -4 इंटू टी -4t -4 इंटू -6 प्लस 24 गेट 3,6, ठीक है। सो व्हाट आई कैन राइट आई टी इज इक्वल्स टू 4t गेट 0,3 -4 इन द ब्रैकेट t -6, ठीक है, गेट 3,6 फिर से रिपीट हो जाएगा एक्सप्रेशन, सो आई शुड रिमूव दिस बिकॉज नाउ आई हैव टू एक्सपांड, ठीक है। एक ही स्टेप को दो बार लिखने का कोई मायने नहीं है। आइए अब हम इसको लेके चलते हैं आगे। आई टी इज इक्वल्स टू 4t इन द ब्रैकेट वी कैन राइट ut माइनस 0 माइनस u ऑफ t माइनस 3, ठीक है, -4 इन द ब्रैकेट t माइनस 6 इन द ब्रैकेट ut माइनस 3 माइनस ut माइनस 6, ओके। आई टी इज इक्वल्स टू 4t ut, ये एक टर्म निकल के आ गई और t माइनस 3 का टर्म यहाँ भी है, t माइनस 3 का टर्म यहाँ भी है, तो बेटर है कि हम इनके कोफिशिएंट्स को क्लब कर लें। इसका कोफिशिएंट है, आइए क्लब कर लेता हूँ, प्लस इसका कोफिशिएंट आएगा -4t, दूसरे का आएगा -4t माइनस माइनस प्लस 24, ठीक है, इंटू u ऑफ t माइनस 3, और लास्ट टर्म क्या आ रहा है? -4t माइनस 6 u ऑफ t माइनस 6, ओके। So what I can write, IT is equals to 4t ut। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट क्या है,
आगे बढ़ाते हैं, दो टर्म उनको दिख रहा है कि उनका लाप्लास लिया जा सकता है, एक टर्म का लाप्लास नहीं लिया जा सकता, तो उन दो टर्म का लाप्लास लेके आगे चलने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, या तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन टाइम डोमेन में होगा और या फिर पूरा एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा। ठीक है, हम यहाँ खिचड़ी नहीं बना सकते कि आधे टर्म का हमने लाप्लास ले लिया और आधे को टाइम डोमेन में लेके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेप जनरली पीपल इनिशिएट। ओके, तो -40 दिस इज -8t, तो -8t प्लस 24, मैंने -8 कॉमन ले लिया, तो शैल आई राइट -8t -3, बिकॉज इफ आई solve this -8 into t, this will be -8t, -8 into -3, this will be +24 into u of t minus 3 -4 in the bracket t minus 6 u of t minus 6. ठीक है, so it is equals to 4t ut minus 8t minus 3 ut minus 3 minus 4t minus 6 ut minus 6. This is it. ठीक है, अब आप देखिए ये t है, ये ut है, ये t minus 3 है, ये ut minus 3 है, ये t minus 6 है, ये ut minus 6 है। मतलब किसी भी टर्म को एडिशनल एड ऑन करने की या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपसे कहा था यदि टी यू टी है तो लाप्लास 1/s², और यदि t माइनस ए यू टी माइनस ए है तो लाप्लास 1/s² e टू द पावर माइनस as। मतलब दोनों ही केस में लाप्लास लिया जा सकता है, तो हम इसका लाप्लास ले सकते हैं। is is equals to 4t ut का लाप्लास 1/s² minus 8t minus 3 ut minus 3 8/s² e to the power minus of 3s minus 4t minus 6 ut minus 6 1/s² e to the power minus of 6s. So this is the Laplace transform of the waveform it. जो वेवफॉर्म आपको दी थी वो करंट का वेवफॉर्म था और उसका लाप्लास लिया तो वो is। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सिंपलीफाई कर सकते हैं। आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। ठीक है, रैम फंक्शन का यूटिलाइजेशन आपको समझ में आ गया। अब हम अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं पैराबोलिक फंक्शन। ठीक है, पैराबोलिक फंक्शन। पैराबोलिक फंक्शन की जहां तक बात है, ये फंक्शन इस तरह का होता है, मतलब पैराबोला बना होगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इसका इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, जब भी आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा तो उसकी इक्वेशन वहां पे दी जाएगी, बस उस इक्वेशन को लेकर के गेट की लिमिट आपको लगानी है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ आपको लिख के दे दूं k1t², so you have to consider कि this is the equation of this particular waveform and let's say the limit is 0,5. So how can you represent this? Let's say this is the voltage waveform Vt and this is the time axis t. So I can simply write Vt is equals to पैराबोलिक फंक्शन का वेवफॉर्म क्या है k1t² और गेट लिमिट क्या लगा देंगे 0,5, दैट्स ऑल। हाँ, अब इसको एक्सपांड कैसे करना है और उसका लाप्लास कैसे लेना है वो जरूर हमें देखना होगा। ठीक है, तो आइए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। Vt is equals to k1t² और इसको हम क्या लिख देंगे ut minus 0 minus ut minus 5. Then we can write k1t² ut minus k1t² ut minus 5. Then I can write k1t² ut, ठीक है, माइनस k1 t² ut minus 5 है तो t को मैं क्या लिख सकता हूँ t minus 5 plus 5 का होल स्क्वायर इंटू ut minus 5। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अंदर बाहर एक सी शिफ्टिंग होगी तभी लाप्लास लिया जा सकता है। फर्दर हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और a प्लस b का होल स्क्वायर को एक्सपांड कर देंगे। तो दिस विल बी k1t² ut माइनस k1 और a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आई कैन राइट t माइनस 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 25 प्लस 2ab यानी 2 5 जा 10 into t minus 5 whole in a bracket into ut minus 5. Okay, then you can simplify this, simplify and expand करना है तो k1t² ut minus k1t minus 5 square ut minus 5 plus 25 k1 ut minus 5 plus माइनस 10 k1 t minus 5 ut minus 5 इस तरह से एक्सपांड होगा और फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम व्हिच इज गिवन। ओके, I hope I made it clear to you. Let us take one example which is based on this parabolic waveform. This problem is an unsolved problem of Van Valkenburg. ठीक है, 0 1 2 इस तरह से दिया है and this is nothing but k0 t square and this is k0 2 minus t का whole square. A very important problem. ठीक है, this height is of course k0 because if I satisfy 1 here
1 square 1 into k naught if I satisfy 1 here 2 minus 1 1 का square 1 into k naught. ठीक है. Now this is a parabolic waveform. Now how can I say that? Because t square term is there. अगर t का टर्म है तो रैंप है, अगर कांस्टेंट टर्म है तो स्टेप है, t स्क्वायर है तो पैराबोला है, ये हमें पता है. ठीक है. तो खैर उसको आइडेंटिफाई कर पाए नहीं कर पाए उससे कोई मतलब नहीं, प्रॉब्लम हमें बनाना है बेसिकली. लेकिन ये है कि आइडेंटिफाई करेंगे तभी लाप्लास ले पाएंगे, तो ये भी जरूरी है. तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा वेवफॉर्म में वोल्टेज vt y एक्सिस में और x एक्सिस में हमारे पास टाइम t. सो हाउ कैन आई राइट दिस? vt शुड बी इक्वल टू k नॉट t स्क्वायर गेट 0,1 प्लस k नॉट 2 माइनस t का होल स्क्वायर गेट 1,2. ठीक है. vt इज इक्वल टू k नॉट t स्क्वायर गेट 0,1 प्लस k नॉट 2 माइनस t का स्क्वायर गेट 1,2. ये हमारा वोल्टेज आ गया. अब इस वोल्टेज vt को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए k नॉट t स्क्वायर इन द ब्रैकेट व्हाट आई कैन राइट, गेट 0,1 तो ut माइनस 0 माइनस ut माइनस 1. ठीक है. प्लस k नॉट 2 माइनस t का होल स्क्वायर इन द ब्रैकेट ut माइनस 1 माइनस ut माइनस 2. ठीक है. vt is equals to k naught t square ut minus 1 plus k naught 2 minus t का होल स्क्वायर ut minus 1 minus ut minus 2. अब इसको एक्सपांड करना है तो vt is equals to k naught t square ut एक टर्म हो गई, ut minus 1 के टर्म को मैं क्लब करना चाहता हूँ. देखिए k naught इसमें कॉमन है. इन द ब्रैकेट व्हाट आई कैन राइट, माइनस ऑफ t स्क्वायर और प्लस 2 माइनस t का होल स्क्वायर, 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, के नॉट बाहर कर लिया मैंने, इंटू यू ऑफ टी माइनस 1 माइनस ऑफ. ठीक है. आई कैन ऑल्सो राइट के नॉट इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस 2. ठीक है. अब आप ये देखिए ये बीच में आ गया हमारे पास टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी. सो वी कैन ऑल्सो राइट वी टी इज इक्वल्स टू के नॉट टी स्क्वायर यू टी, और इसको यदि मैं एक्सपांड करूंगा ए प्लस बी करता हूं तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा है ना. तो 2 के नॉट और a माइनस बी करता हूं तो 2 माइनस टी यानी 2 माइनस 2t, तो 2 अगेन कॉमन तो t माइनस 1 हो जाएगा ये, और u t माइनस 1 माइनस ऑफ के नॉट t माइनस 2 का होल स्क्वायर. आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मैंने इसको टी 2 माइनस टी के स्क्वायर को टी माइनस 2 के स्क्वायर क्यों लिखा. वैसे तो दोनों बात बराबर है, वेदर इट इज ए माइनस बी स्क्वायर और बी माइनस ए स्क्वायर, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, बट इंटेंशनली आई एम राइटिंग बिकॉज आई हैव टू मेक सेम थिंग इनसाइड u t minus 2. Inside u it is t minus 2, so outside u it should also be t minus 2 in order to create the simplicity in taking the Laplace transform. Okay. इस तो अब देखिए ये क्या हो गया, के नॉट टी स्क्वायर यू टी, और ये हो जाएगा माइनस 4 के नॉट टी माइनस 1 यू टी माइनस 1. आई शुड यूज द नेक्स्ट स्लाइड हियर. सो वी टी इज इक्वल्स टू के नॉट टी स्क्वायर यू टी, के नॉट टी स्क्वायर यू टी माइनस 4 के नॉट टी माइनस 1 यू टी माइनस 1 माइनस 4 के नॉट नहीं प्लस 4 के नॉट. ठीक है. प्लस 4 के नॉट टी माइनस 1 यू टी माइनस 1. Yes, it is plus 4 k naught और माइनस k naught t minus 2 स्क्वायर माइनस k naught t minus 2 का स्क्वायर ut माइनस. ठीक है. अब आपको मैं बता दूं कि ut का लाप्लास क्या है, 1 अपॉन एस है. tut है तो लाप्लास क्या है, 1 अपॉन एस स्क्वायर है. t का इंटीग्रल करेंगे तो क्या मिलेगा, t स्क्वायर बाई 2 ut, तो इसका लाप्लास है 1 अपॉन एस क्यूब. ठीक है. ut का लाप्लास 1 अपॉन एस है, tut का लाप्लास 1 अपॉन एस स्क्वायर है, t स्क्वायर बाय 2 ut का लाप्लास 1 अपॉन एस क्यूब है. प्लीज कीप इन माइंड. तो यदि हमारे पास कहीं t स्क्वायर ut आ जाता है तो लाप्लास क्या लेंगे, तो सिंपली है 2 को हम यहाँ कर देंगे, तो t स्क्वायर ut का लाप्लास 2 अपॉन एस क्यूब. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, k नॉट इज अ कांस्टेंट, t स्क्वायर ut का लाप्लास 2 अपॉन एस क्यूब, तो 2 अपॉन एस क्यूब प्लस. ठीक है. 4 k नॉट इज अ कांस्टेंट, t minus 1 ut minus 1, tut का लाप्लास क्या है, 1 upon s square, so t minus 1 ut minus 1 means it is shifted, so 1 upon s square e to the power minus s, so 1 upon s square e to the power minus s. ठीक है. यहाँ 2 नहीं आना, माइनस k नॉट t, अगेन t स्क्वायर ut वाली फीलिंग आ रही है, मतलब पैराबोलिक है, यानी 2 upon s क्यूब, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 नहीं है ना फंक्शन, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 upon s क्यूब.
ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ शिफ्टिंग भी है -2 की, तो e to the power -2s, so this will be the answer. I hope I made it clear to you. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने देखे स्टेप वेवफॉर्म, रैंप वेवफॉर्म और पैराबोलिक वेवफॉर्म। एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्लीज उसका सॉल्यूशन निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम और नॉट, so that I can guess how much I am successful to clarify the concept regarding the waveform synthesis, which is a very important part of network analysis. In this particular waveform, we are considering ramp, step, and parabola, all the kind of waveform. Okay. This is RAM. ठीक है, RAM की इक्वेशन तो आप बना सकते हैं। This is 7, this is 21, and this is let's say 10. So this is 10 minus t का whole square. ठीक है, अब इस पॉइंट को हमें यहाँ पे रखना है और ये पॉइंट ही डिसाइड करेगा कि 21 हमें चाहिए, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। इफ आई पुट 8 ओवर हियर, 8 10 minus 8, 10 minus 8 means 2, 2 का स्क्वायर 4, so this will be 21/4। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम को मन से क्रिएट भी किया जा सकता है। मैंने किस तरह से किया है, यहाँ पे 10 रखूंगा तो 10 minus 10 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 21 चाहिए। इफ आई पुट 8 ओवर हियर, तो 10 minus 8 is 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, 21, सो इट इज सेटिस्फाइंग। और यहाँ से ये रैम वेवफॉर्म है, तो इसकी इक्वेशन हम बना लेंगे y इक्वल्स टू mx, बिकॉज नो c will be there because it is passing through the origin, and it is a step waveform because it is maintaining a constant height over here। ठीक है, so very simply you can write, suppose this is the voltage waveform vt and this is the time axis t, so how can we write the function vt is equals to y is equals to mx, m कितना आएगा 21/7 यानी 3, तो 3t, और गेट लिमिट क्या आएगी 0,7 प्लस 21, गेट लिमिट क्या आएगी 7,8 प्लस पैराबोलिक फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन टू अस 21/4 इंटू 10 माइनस टी का होल स्क्वायर, गेट लिमिट क्या आएगी 8,10। अब इसको किस तरह से एक्सपांड करना है और फर्दर उसमें क्या चेंजेस करके उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ये अब आपको देखना है। फंक्शन मैंने क्रिएट कर दी। किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है, फंक्शन क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोज आपने पहली स्टेप जो है फंक्शन क्रिएट करना उसमें गलती कर दी, तो उसके जो रेप्लीकेशंस है वो आगे आने वाली स्टेप्स में दिखाई देंगे। मतलब आपकी शिफ्टिंग भी गलत होगी, आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी गलत होगा, फाइनली आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। So you should be very, very careful while making the function for the given particular waveform. Okay, okay, thank you very much for joining this particular session. We have seen very important aspect over here। ठीक है, और I hope कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। Please write in the comment box।